Now we understood what do you mean by transaction. Then what is the cash transaction? What is the credit transaction? Cash transaction is a transaction in which the transaction is settled at the same point of time. And in case of credit transaction, transaction is pending for settlement. Transaction has taken place, but the settlement is pending. And credit transactions gives rise to debtors and creditors. Buyer become debtors and seller becomes creditor. The relation between the seller and buyer becomes relationship of creditor and debtor. Okay, next. So relationship changes. Then we have to understand the term the goods. What do you mean by goods? What do you mean by goods? Goods are the things in which business is done, in which business is done, or things in which business deals. Things in which business deals with. Example, for Pragati Book Depot, books are the goods. They purchase the books, they sell the books, and therefore books are called as goods. Then उसके बाद for a laptop shop, a laptop shopping, they purchase and sell laptops. So laptops are goods for them. For a mobile shopping, they purchase and sell mobiles. So mobiles are goods for them. Then next, for medical, medicines are goods. Then for Maruti Udyog Limited, MUL, vehicles are goods. They manufacture vehicles and they sell vehicles. For uh, Shakti Sports, sports equipment are goods. Then, so if try to understand what do you mean by goods? जिसमें आप बिजनेस करते हो उसको गुड्स बोलते हैं. So if you do business in books, you are a dealer in the books. You purchase the book, you sell the books. Books will be called as goods. If you are purchasing and selling laptops, laptops will be treated as your goods. If you purchase and sell mobiles, mobiles will be called as goods. If you're a medical shop owner, medicines purchased and sold is goods. For MUL, right, vehicles manufactured and sold are their right goods. For Shakti Sports, there is a shop, Shakti Sports shop. For them, sports equipments are goods. For Vijay Sales, electronic gadgets, या Chroma, for them, right, your right electronic gadgets are goods. They purchase and they sell, etc.
गुड्स आर द थिंग्स इन विच यू डू द बिजनेस. जो आप परचेस करके सेल करते हो या मैन्युफैक्चर करके सेल करते हो in order to earn the profit is called as goods, and goods are recorded. Goods are recorded through purchase account and sales account. एक होता है परचेस अकाउंट, दूसरा होता है सेल्स अकाउंट. When you purchase the goods, it's your expense, and when you sell the goods, it's your income, and difference between them is a profit. Difference between them is profit. Suppose Vijay sells purchase equipments for rupees 60 lakhs. Vijay sells purchase equipments for 60 lakhs, and thereafter they sold those equipments for 70 lakhs. 60 lakhs में purchase किए, 70 lakhs में sell किए. So when they purchase the goods, maybe on cash basis, maybe on credit basis, it has incurred the expense. वो expense है उनका. And when they sold the goods, maybe on cash basis or maybe on credit basis, ठीक है, they have generated the income. So expense is 60 lakhs, sales income is of 70 lakhs, 10 lakhs profit they have made. So purchases, as you know, can be on cash basis or on credit basis. Similarly, sales transactions, every transaction can be on cash basis or on credit basis. ये लिखने की जरूरत नहीं बेसिकली, ठीक है. So you should understand this. So goods are the things in which you do the business. Then, so goods changes as the business changes. Goods changes as business changes. Then next, आगे, let me check. Just a second. Yes, I think. Just a second. So goods are the things in which you do the business. So it can be anything. It can be anything. आप इमेजिन करो, आप आपकी एक लाइफ थोड़े फ्लैशबैक में जाओ और देखो आपने क्या क्या चीजें परचेस की. यू गो टू ए किराना शॉप, वो जो किराना है इट इज गुड्स फॉर यू. You go to stationery shop, you purchase stationery, it is goods for him. Try to understand. You go to example, और अगर मुझे बहुत ही अंदर जाना है तो देखो example example for a builder, promoter, real estate वाला, for him flats manufactured, flats constructed is goods. He will construct the flat, he will sell the flat, they are the goods. गुड्स वो चीजें होती है जिसमें आप बिजनेस करते हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. गुड्स वो चीजें होती है जिसमें आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है. सो एंड गुड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय two accounts in your books. You will purchase the book goods, that is represented by purchase account, and when you sell the goods, that action is recorded through sales account. Purchases is your expense, sales is your income. Purchase the goods at a lower price, sell the goods at a higher price, difference is a profit. Difference is profit. So these are goods, ठीक है. और हमारे कितने सारे ट्रांजैक्शन में लिखा होता है
फर्नीचर डीलर एग्जांपल, कोई फर्नीचर डीलर है, फॉर हिम फर्नीचर्स इज फर्नीचर मार्ट है, फर्नीचर मार्ट, फॉर देम furnitures are goods, they will purchase the furniture and they will sell the furniture, simple. आपका फर्टिलाइजर का शॉप है विलेज में, यू हैव फर्टिलाइजर का शॉप, सो दोस फर्टिलाइजर्स परचेज टू बी सोल्ड बैक, फिर से सेल करने किसी को दो, दे आर गुड्स. आपका क्लोथ का दुकान है, ठीक है, सो द क्लोथ्स परचेस्ड, शर्ट्स परचेज, जीन्स परचेज, पैंट्स परचेज, ड्रेस मटेरियल परचेज इज द गुड्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑलवेज रिमेंबर, गुड्स वो चीजें होती है जिसमें आप क्या करते हो, आपका बिजनेस करते हो, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए बिजनेस. एंड ऑलवेज रिमेंबर, गुड्स आर रिकॉर्डेड थ्रू परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट. परचेस इज एक्सपेंस, सेल्स इज इनकम, ठीक है. देन आगे, सो ये था गुड्स. The next term, try to understand, is next term is assets. Assets are the things owned by business. Things owned by the business, or assets are the rights owned by the business. मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं. थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस, राइट्स ओन्ड बाय द बिजनेस, राइट. अमाउंट रिसीवेबल्स, example, right to receive the amount. What are the assets? Assets are the things owned by the business. जब आप बिजनेस करते हो, you need to have some things. Example लिखो, land and building, land and building. You purchase land and building. क्यों purchase की land and building? Because you want to have your office. कस्टमर्स आएंगे तो उनको बैठने के लिए जगह चाहिए, राइट. आपको आपकी फैक्ट्री, आप अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आप फैक्ट्री इंस्टॉल करनी होगी, उसके लिए लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड देयरफॉर यू हैव लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज असेट, दैट इज असेट, ठीक है. असेट्स आर ओनरशिप, ओनरशिप दिखाते हैं, ओनरशिप है, मेरी ओनरशिप है. सो लैंड एंड बिल्डिंग इज असेट. दे शो यूर राइट, उस लैंड में, उस बिल्डिंग में आपका राइट है, मींस यू कैन सेल इट, यू कैन यूज इट फॉर एनी पर्पस एज पर योर विश, नो वन कैन चैलेंज यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ओनरशिप दिखाते, इफ यू आर ए ओनर ऑफ ए थिंग, इफ यू आर ओनर ऑफ एनीथिंग, यू आर, इट इज, दैट थिंग इज योर असेट, दैट थिंग इज योर असेट. जिस भी चीज के आप ओनर होते हो वो चीज आपकी असेट होती है. लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, स्कूल है आपका, स्कूल, उसकी लैंड एंड बिल्डिंग रहेगी, बिल्डिंग रहेगी. स्कूल बिल्डिंग इज ए असेट ऑफ स्कूल, कॉलेज बिल्डिंग इज ए असेट ऑफ दैट कॉलेज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू ओन ए फ्लैट, दैट फ्लैट इज असेट ऑफ योर फैमिली. राइट. ए फार्मर ओन्स ए लैंड, दैट लैंड इज ए असेट ऑफ दैट फार्मर, बिकॉज ही हैज द ओनरशिप. So those things which are owned by you are your assets. जो आपकी चीजें होती है उनको assets बोलते हो, ठीक है. सेकंड, plant and machinery. In a manufacturing process you require plant and machineries. In manufacturing process you require plant and machineries. अब देखो ना, imagine टाटा मोटर्स लिमिटेड की फैक्ट्री, just imagine, right.
100-200 एकर्स पे उनकी फैक्ट्री होती है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उनकी, राइट? बिकॉज they require that much plant and machineries to be used. Those plant and machinery is asset of the Tata Motors. एक गिरनी है, सपोज गिरनी पता है ना आपको? गिरनी में जो मशीनरी है, वो जो जिस राइट, दैट मशीनरी इज असेट ऑफ दैट ओनर. एग्जांपल दे रहा मैं आपको, ऐसे एग्जांपल दे जहां पे आप गए होंगे. देन so plant and machineries are owned by the business so that they can manufacture goods, they can produce goods, they can give the services. ठीक है? Then plant and machinery, उसके बाद computers, laptops, computers and printers are assets. You have computer at your home, it is your asset, it is your asset. Then दूसरा, vehicles are your assets. You own the vehicle, you have purchased it, you will be using it for your activities, that is assets. These assets are called as fixed assets. इनको कौन से asset बोला जाता है? Fixed asset. Because they do not change regularly, they are fixed in the nature. Once you purchase land and building, it remains as it is forever, right? For a long period of time. Plant and machinery purchase करोगे, right? They remain as it is for a long period of time. Computers and vehicles, computers and printers are purchased, they work at least for 3, 4, 5 years down the line. Vehicles आप purchase करते हो तो that runs for 6, 7, 8, 9, 10 years almost. So those assets which are purchased for the long term, assets which are purchased for the long term and their use will be long term, एक साल से ज्यादा जिनका यूज रहेगा, those assets are called as fixed asset. उनको बोला जाता है fixed tangible assets. Tangible मतलब they have the physical substance, हम उनको जाके टच कर सकते हैं. Tangible assets. Tangible मतलब हम उनको देख सकते हैं, हम उनको हाथ लगा सकते हैं, हम उनको फिजिकली टच कर सकते हैं. That is right, tangible things. Fixed asset means will be used for more than 1 year, one accounting year. That is 12 months से ज्यादा जो भी एसेट चलेगी उसको बोला जाता है इट इज अ फिक्स्ड एसेट. क्या बोला जाता है? फिक्स्ड एसेट. विदाउट देम यू कैन नॉट डू द बिजनेस. यू हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स, उसके लिए मशीनरी चाहिए. यू हैव टू डिलीवर द गुड्स टू कस्टमर्स लोकेशन, उसके लिए व्हीकल चाहिए, राइट? you require computer and everything, right, which are used in the manufacturing. Those computers, printers, etc., right, are the fixed assets. Furniture, एक और ऐड करो, furniture and fixtures, they all are your fixed asset, tangible assets, and they will be purchased and will be used for more than 12 months. एक सीए का ऑफिस समझो, सीए का ऑफिस, या आप डॉक्टर के इधर गए, हर कोई एक बार तो डॉक्टर के इधर गया होगा. हम डॉक्टर के इधर गए, ध्यान देना, जैसे उसके क्लिनिक में जाते हो, द क्लिनिक इज ओन्ड बाय हिम, इट इज हिज एसेट, दैट बिल्डिंग इज एसेट. ठीक है? देन आप वहां पे जाओगे, आप पेशेंट को बैठने के लिए फर्नीचर वगैरह रहेगा, बेंचेस वगैरह रहेंगे. Those benches are purchased for more and to be for the use for more than 1 year. वो आपको सेल नहीं करता, चलो पेशेंट आ गया तू फर्नीचर लेके जा, वो फर्नीचर नहीं सेल कर रहा है, उसने फर्नीचर परचेस किया है सो दैट ही कैन यूज इट, ही कैन यूज इट, सो दैट फर्नीचर सालों साल चलता है, इट इज फिक्स असेट. फिर बेड्स रहेंगे पेशेंट को सोने के लिए, राइट, सलाइन वगैरह देना है तो वो 10-12 बेड्स रहेंगे. Those beds are his fixed asset because those beds are there, he has purchased for use for more than 1 year. वो सब इक्विपमेंट्स रहेंगे, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, टेथोस्कोप रहेगा उसका, राइट, वो मशीन रहेगा जिससे वो
ब्लड प्रेशर चेक करता है, राइट, वो स्टैंड रहेंगे, वो सब चीजें जो जो उसके 1 साल से ज्यादा चलेगा, दे आर हिज फिक्स्ड असेट्स, दे आर हिज फिक्स्ड असेट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप आपके स्कूल में गए, व्हाट आर द फिक्स्ड असेट? प्लेग्राउंड इज अ फिक्स्ड असेट, ग्राउंड इज अ फिक्स्ड असेट ऑफ द स्कूल, बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड असेट. वो जो साउंड सिस्टम लगाई है, राइट, प्रिंसिपल वहां से अनाउंस करते हैं, सब क्लासरूम में सुनाई देता है. दैट साउंड सिस्टम इज देयर फॉर मोर देन 1 year. इट इज अ फिक्स्ड असेट. कंप्यूटर्स वगैरह, जो कंप्यूटर लैब रहेगी, उसमें जो कंप्यूटर्स है, दे आर बीइंग यूज्ड फॉर इयर्स एंड इयर्स, दे आर द फिक्स्ड असेट्स. Try to understand. Benches are the fixed assets. Blackboard is a fixed asset. Try to understand. Try to imagine. School buses. School buses purchase किए, उन्हें सालों साल चल रहे. Vehicles, that is their fixed asset. Owned by whom? Not by principal. It is owned by the school or the जो भी संस्था है उसने. So they teachers को, principal को रहने के लिए क्वार्टर है स्कूल में. That building is also owned by not principal, by the school. प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा तो प्रिंसिपल को जगह छोड़नी पड़ेगी, स्कूल वही रहेगा, वो बिल्डिंग वही रहेगी. दे आर द फिक्स्ड असेट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो विदाउट दैट स्कूल कैन नॉट बी रन. ये सब चीजें होनी चाहिए स्कूल में, बेसिक थिंग्स है. सो दे आर द फिक्स्ड असेट्स. ठीक है, लाइब्रेरी रहेगी, लाइब्रेरी में बुक्स रहेंगे जो सालों साल है, बच्चे यूज करते हैं वो. Try to understand. ऑफिस में जेरोक्स मशीन रहेगी, that xerox machine is being used for years after years. आपने जेरोक्स शॉप डाला है तो आपको क्या चाहिए? वो जेरोक्स के 4-5 मशीन चाहिए. You purchase it and you use for 6, 7, 8, 9, 10 years. That is your fixed asset. आपके घर में जो फ्रिज है, कूलर है, आपके घर में जो एसी है, वॉशिंग मशीन है, देखो व्हीकल है, आपका फ्लैट है, राइट, योर वॉच, your mobile, your laptop, all are fixed asset because you have purchased so that you can use it for more than 12 months. They are your fixed assets. ठीक है, and that is very important to provide the services. हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल के केस में एम्बुलेंस, हॉस्पिटल बिल्डिंग, राइट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, ये सब चीजें उनके क्या रहेंगे? राइट, फिक्स्ड असेट्स रहेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन एंड दे आर टेंजिबल. टेंजिबल मतलब हमें जब मैं फर्नीचर बोलता हूं तो मैं दिखा सकता हूं ये फर्नीचर है बोल के. मोबाइल इज अ टेंजिबल, मैं दिखा सकता हूं ये मोबाइल है. टेंजिबल मींस वी कैन टच इट, राइट, वी कैन सी इट, दैट इज अ टेंजिबल. ठीक है, नेक्स्ट, दे आर योर फिक्स्ड असेट्स. देयर आर सम असेट्स व्हिच आर इंटेंजिबल इन द नेचर. गुडविल, पेटेंट्स, copyrights, goodwill, patent, copyrights, trademarks. Goodwill मतलब क्या? Goodwill is name of the business, name of business in the market, reputation of the business. Goodwill is reputation of the business. Reputation of business in the market. Example, like जब हम बोलते हैं पुणे में काका हलवाई has its good name in the market, चितई has a good name in the market. गुडविल है, गुडविल है, चितई के गुडविल है, उनके नाम पे लोग जाते हैं उधर परचेस करने को, काका हलवाई के नाम पे लोग जाते हैं. एकतम has got goodwill in the market. Ekatvam camp has got goodwill in the camp area, in that whole area. It is known for its service. Try to understand. So, ये जो चीजें होती ना, गुडविल, महेंद्र सिंह धोनी हैज नेम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. धोनी अगर किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर होता है, उसका सेल बहुत इंक्रीज होता है. क्यों? बिकॉज धोनी उसमें, धोनी इज अ ब्रांड एम्बेसडर. Sachin Tendulkar has a goodwill. Virat Kohli has a goodwill. Roger Federer has goodwill. Goodwill means name of the entity, and that helps the business to generate more customers,
to generate more revenue. Reliance, Tata's, Birla's, example, have the name in the market. They have the goodwill. Goodwill का फायदा होता है आपको, customers आते हैं. So that is called as goodwill. Then patents. Patents is a formula. Like अभी example, COVID-19 की लस आ जाएगी, वैक्सीन आ जाएगी, उसका पेटेंट किसी एक कंपनी के पास रहेगा, जिन्होंने वो ढूंढा है. दे गेट द पेटेंट. पेटेंट मीन्स राइट. खाली वही कंपनी जिसने वो ढूंढा है, that company only will be producing that COVID-19 vaccine. No others can copy it. मोबाइल जब नया, अब मोबाइल में कई नया फीचर आ गया, लाइक एग्जांपल एप्पल जैसे मोबाइल कोई दूसरा बनाता नहीं, बिकॉज वो जो फीचर्स देते हैं उसका पेटेंट उनके पास है. वन प्लस ने जो उनकी टेक्नोलॉजी लाई है उसका पेटेंट वन प्लस के पास है. पेटेंट्स आर द राइट्स दैट नो वन कैन कॉपी फ्रॉम यू. कॉपीराइट्स मतलब कोई टेक्स्ट बुक होता है, कंटेंट होता है, कंटेंट, स्टोरीज, स्क्रिप्ट्स, सॉन्ग्स, दे गेट कॉपीराइटेड, राइट? They get copyrighted. Content gets copyrighted. Formula get patented. No one can copy. अगर कोई कॉपी करता है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हो. Then trademarks. We cannot copy the name of Reliance. We cannot copy the name of Tata's. We cannot copy the name of Ekatom because the names are trademarked. Means no one can use our name. Amul. आपने देखा होगा अमूल, अमूल जैसे बहुत सारे मिलेंगे, बबूल, बिबुल, ऐसे कुछ तो नाम मिलेंगे आपको, बट एग्जैक्ट अमूल नहीं मिलेगा बिकॉज दैट नेम इज ट्रेडमार्क. यू कैन नॉट कॉपी द नेम. ठीक है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर इंटेंजिबल. हम इनको देख नहीं सकते, हम उनको फील कर सकते. मैं बोलता हूं कि कॉपीराइट दिखाओ तो आप दिखा नहीं सकते, पेटेंट्स दिखाओ आप दिखा नहीं सकते. दे आर इंटेंजिबल. दे आर फिक्स्ड असेट्स but intangible. They help you to generate revenue. They are for more than 1 year, but intangible. Like love, affection of your parents. You can feel it, you cannot show it. आप नहीं देख सकते सर ये देखो लव है, ऐसे नहीं दिखा सकते. ये देखो अफेक्शन है हमारे पेरेंट्स का, नहीं. बट यू कैन शो द मोबाइल. सर ये मोबाइल है. समझ में आ रहा है? यू कैन शो द मोबाइल बट यू कैन नॉट शो द लव. यू कैन नॉट शो द अफेक्शन. You cannot show goodwill, you cannot show patents, copyrights, trademarks, but you can feel them. Goodwill की वजह से लोग आपके पास आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, आप पे लोग ट्रस्ट रखते हैं, कस्टमर्स की लॉयल्टी होती है. पेटेंट्स है तो आपको राइट है प्रोड्यूस करने का, कोई वो कॉपी नहीं कर सकता आपसे. कॉपीराइट है, नो वन कैन कॉपी योर स्क्रिप्ट, नो वन कैन कॉपी योर स्टोरी, योर सॉन्ग्स. ट्रेडमार्क, राइट? ट्रेडमार्क मीन्स नो वन कैन कॉपी योर नेम. So they are intangible assets. Fixed asset means will be used for more than one accounting year. You have purchased them or you have acquired them so that you can use it for more than 1 year. Assets का example दे रहा हूँ. Then there are goods stock, I mean cash balance, बैंक बैलेंस. आप कैश से कुछ भी कर सकते हो, बैंक बैलेंस से कुछ भी कर सकते हो. ठीक है? इन्वेस्टमेंट्स, आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है अलग अलग कंपनीज में, आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, दे आर योर असेट्स. देन स्टॉक और इन्वेंट्री. इन्वेंट्री आप सेल करोगे, परचेस करके रखा है, परचेस इज एक्सपेंस. एंड जो इन्वेंट्री बाकी आपके पास वो आप बाद में सेल करोगे, इट इज योर असेट. इन्वेंट्री, स्टॉक. डेटर्स, पैसे लेने, और एनी रिसीवेबल इज असेट. एनी रिसीवेबल, किसी से पैसे लेने, इट इज असेट. एंड दीज आर करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स. हमें अभी इतना फर्क नहीं पड़ता व्हाट इज फिक्स्ड व्हाट इज करंट, बट समझ लेना देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट्स, फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स. करंट असेट्स आर द असेट्स व्हिच आर यूज्ड
which have life of less than 1 year, which have life of more than 1 year, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, वो 1 ईयर से ज्यादा लाइफ है वो फिक्स असेट, 1 साल से कम लाइफ है दे आर करंट असेट. These are some of the examples of right assets: land and building, plant and machinery, computers and printers, vehicles, furniture and fixtures, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सालों साल चलेंगे, उनमें से कोई टेंजिबल है कोई इंटेंजिबल है. ठीक है. देन इन्वेस्टमेंट्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक और इन्वेंट्री, डेटर स्टेटस, दे आर जनरली लेस देन 12 मंथ्स, जनरली लेस देन 12 मंथ्स. उन इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं राइट, उन इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट. क्या बोलते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. सो करंट असेट्स उनको बोलते हैं करंट असेट्स. लाइफ सो अभी फिक्स असेट एंड करंट असेट भी नहीं समझा तो भी चलेगा. वो असेट जो 1 साल से ज्यादा चलेंगे दे आर करंट असेट्स, एंड वो असेट जो 1 साल से कम चलेंगे दे आर, 1 साल से ज्यादा चलेंगे फिक्स्ड असेट, 1 साल से कम चलेंगे करंट असेट. ठीक है. सो दे आर असेट्स. ठीक है. देन सो आज हम असेट पे आके रुके. आई विल एंड टुडेज लेक्चर. कल हम एक और लेक्चर लेंगे जिसमें मैं लाइबिलिटीज के बारे में बात करूंगा, इनकम के बारे में बात करूंगा, एक्सपेंस के बारे में बात करूंगा. ठीक है. सो कल का टाइमिंग आफ्टरनून में रहेगा. आई विल कम्युनिकेट यू द टाइम. आज थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ बिकॉज मयूरी मैम भी उधर एक लेक्चर ले रही थी जो मैंने पहले लिंक शेयर की थी, तो वहां पे आई कुड नॉट टेक द लेक्चर. Right, I will make sure and accordingly I will share the link. So kal, right, we will be doing with, right, what do you mean by liabilities, what do you mean by income and what do you mean by expense. ये 4 चीजें समझ में आ गई तो अकाउंटिंग इजी हो जाती है. असेट्स मतलब वो सब चीजें जिसके ओनर आप हो. ओनर, ओनरशिप है तो असेट है, ओनरशिप नहीं है तो असेट नहीं आपकी. ठीक है. ओके, थैंक यू.